are you? Now let's start a new topic, new chapter, and that is accounting for share capital. Accounting for share capital is a very interesting chapter. It depends upon generalize. Okay friends, आपको पता है in sole proprietorship the business is managed by one person. There is a limitation of capital. In partnership firm, two or more persons start a business and majority of the partners invest a capital. But there is also a problem of capital. Now, to avoid the problem of capital, to avoid the problem of management, there is a huge one, and that is company formation. आपको पता है company is established under the Act 1956 and the Revised Act 2013. So, to avoid the limitations of sole proprietorship and partnership, the form is company. So company formation, इसमें क्या होता है? So many shareholders are there, and there is a professional management, right? No limit of the capital, मतलब huge amount of capital. Okay, so before I start this share and share capital, I would like to explain mainly two types of company. One is a private company. आपको पता है, it requires incorporation certificate to start the business. And यहाँ पे चाहिए हमें public limited company में क्या चाहिए? Certificate of commencement of business. Private limited कंपनी में क्या होता है? प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स आर 2 and the maximum are 200. This will be asked in the objective. That's why I'm going to explain. And public कंपनी में क्या होता है? In public company, minimum members are 7 and there is no restriction of upper limit. So this is a simple idea of the company. Now, our main topic is share and share capital. See, in sole proprietorship, we use the word capital. Partnership, we use the word partners capital. In company, the word is used share capital. Capital of the company is called share capital. Capital of the company is called share capital, which can be divided into transferable small denomination. Each such unit of denomination is known as share. Share क्या होता है? The total share capital of the company is divided into small denomination. And such denomination is known as share, which are transferable. Generally, the face value of the company nowadays is rupee 1, maybe sometime 10, maybe 100. Okay, so this is the introduction of the share and share capital. In company formation, there is huge amount of capital. Okay, friends. So write down this introduction.
Now, friends, let's start the types of share capital. As you know, shares, equity shares are divided into small part. The total capital is divided into small denomination that is known as share. Types of shares, there are two types of share mainly. One is a preference share and second is equity share. What is the difference between preference share and equity share? So we have mainly, these are the points. Let's take the meaning of preference share and equity share. Preference share में क्या होता है friends? The shares in which the preference is given for the dividend before paying dividend to equity shareholder, and at the time of liquidation the repayment is made to the preference share. So priority is given, preference is given. Now equity share में क्या होता है? The shares which have no priority, no preference, the shares which are not preference share, these are equity share. And equity share are the primary share. It is compulsory for every company to issue equity share. इसमें कोई प्रेफरेंस नहीं होता है, राइट? और क्या होता है? रेट ऑफ डिविडेंड. प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है? रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, लाइक 10%, 6%, 8%. इक्विटी शेयर में क्या होता है? रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स. आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर, whatever the profit is available, अगर प्रॉफिट बहुत ज्यादा है then company can give more dividend. हमने सुना होगा कई कंपनी होती है like Colgate, Reliance, they give 80%, 90% dividend. So इसमें कोई लिमिट नहीं होती, depends upon available of profit. जितना प्रॉफिट ज्यादा है, इसमें देखो रिस्क भी है. More risk, more profit. Less risk, less profit. Right of repayment at the time of liquidation. ये preference shareholders को right मिलता है. Preference shares holders जो होते हैं ना, उनको right मिलता है at the time of liquidation before paying the amount to equity shareholders. So at the time of liquidation, राइट ऑफ रीपेमेंट इज मच मोर. पहले उनको देना पड़ेगा और बाद में जो भी अवेलेबल अमाउंट है उसमें से इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा मिलता है. इन शॉर्ट दे आर पेड एट लास्ट. तो ऐसे जरूरी नहीं है. कभी कभी मान लो कंपनी बंद होती है, लिक्विडेशन होता है वॉलेंटरी, तो इनको बहुत ज्यादा पैसा मिलता है. वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है. They don't have any voting rights. So equity shareholders, they are the real owner. So उनको right मिलता है because they are the owner. Okay. Then right to participate in management. Preference shareholder को कोई right नहीं है management में. They are not owner. So equity shareholders, they are the owners, so they have right in the management. Areas of dividend. अगर मान लो आपने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया है, अगर इस बार प्रॉफिट नहीं है तो जो डिविडेंड है वो क्यूमुलेट हो जाता है, प्रोवाइडेड अगर आपने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया है तो. इक्विटी शेयर में ऐसा कोई नहीं है. अगर इस बार प्रॉफिट नहीं है, नो डिविडेंड, दैट्स इट. अगर नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट है तो डिविडेंड मिलेगा. इट इज डिसाइडेड इन एनुअल जनरल मीटिंग. ओके, एक और पॉइंट है कन्वर्जन. अगर आपने कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया है तो प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, लेकिन इक्विटी में ऐसा कोई कन्वर्जन होता नहीं है. एक और पॉइंट है रिडम्पशन. अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आपने इश्यू किया है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर,
then redeemable preference shares are redeemed on a particular date, fixed time. तो ये रिडेम्पशन हो जाता है अगर आपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया है तो। इक्विटी में ऐसा कोई होता नहीं है, जब कंपनी बंद होती है तब फाइनल रिडेम्पशन होता है। सो दिस आर द डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। ओके फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट डाउन। Hello friends, now the next question is types of share capital. Types of share capital. Number one, authorize या तो nominal या तो registered capital. What is authorized capital? See, the capital which is mentioned in memorandum of association. आपको पता है capital clause. The total capital of the company is known as authorized capital. It is also known as nominal capital or registered capital. For example, suppose ऐसा mention किया है memorandum में कि भाई total authorized capital is rupees 10 lakhs and it is divided into 1 lakh share of 10 each. So we can say 10 lakhs, मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया है, वैसे कंपनी की तो बहुत बड़ी कैपिटल होती है। सो ये कैपिटल से ज़्यादा शेयर कंपनी कभी भी इश्यू नहीं कर सकती। सो द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी विच इज मेंशन इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दैट इज कॉल्ड ऑथोराइज्ड कैपिटल। चलो हम मानते हैं कि मेरे पास ऑथोराइज्ड कैपिटल 10 lakhs रुपीज है, डिवाइडेड इनटू 1 lakh शेयर, मतलब हमारे पास 1 lakh शेयर है ईच ऑफ 10। Now next is issued capital. अगर कंपनी को पैसे की जरूरत इतनी नहीं है, then कंपनी इश्यू, मान लो 60,000 शेयर, जितना शेयर इश्यू करती है कंपनी आउट ऑफ ऑथोराइज, उससे कहते हैं इश्यूड कैपिटल। मान लो कंपनी अगर 60,000 शेयर इश्यू करती है आउट ऑफ 1 lakh शेयर, हमारे पास 1 lakh शेयर है। ओके, सो 60,000 into 10, that is 6 lakhs, is known as issued capital. Friends, keep in your mind, issued capital should not be more than authorized capital. हमारे पास authorized share capital है 10 lakhs, that is a 1 lakh share of 10 each. उनसे ज्यादा शेयर हम इश्यू नहीं कर सकते। क्लियर? authorized क्या होता है? the maximum capital, the total capital of the company. okay, then issued में क्या होता है? अगर ये authorized में से कंपनी को जितना चाहिए उतना इश्यू करती है, और इश्यूड कैपिटल शुड नॉट बी मोर देन ऑथोराइज, इनसे ज्यादा तो नहीं हो सकती। व्हाट इज सब्सक्राइब कैपिटल? व्हाट इज सब्सक्राइब्ड? द वैल्यू ऑफ द शेयर फॉर विच एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड। कंपनी इश्यू करती है 60,000 शेयर्स, लेकिन कितनी एप्लीकेशन हम रिसीव करती है, कितनी एप्लीकेशन हम रिसीव करते हैं इन्वेस्टर से, that is known as subscribed capital. I repeat, the value of the shares for which applications are received out of issued share capital is known as subscribed capital. मान लो 60,000 shares are issued, हमें एप्लीकेशन मिलती है 58,000 शेयर्स की, तो 58,000 into 10, that is subscribed. Keep in your mind, subscribed capital should not be more than issued capital. या तो इक्वल होते हैं या तो इनसे लेस होती है। अगर मान लो ज्यादा एप्लीकेशन हमें मिलती है तो भी हम इनसे ज्यादा शेयर हम सब्सक्राइब कैपिटल में नहीं ले सकते,
या तो हमें प्रोरेटा करना होता है इश्यूड, या तो रिफंड करना होता है। अगर कम एप्लीकेशन आती है तो उसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, ज्यादा एप्लीकेशन आती है तो उसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। फाइन। सो सब्सक्राइब कैपिटल में क्या होता है? रिपीट, द वैल्यू ऑफ द शेयर्स फॉर विच एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड। जब हम शेयर इश्यू करते हैं एंड वी रिसीव एप्लीकेशंस, तो ये सब्सक्राइब कैपिटल इश्यूड कैपिटल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी आइदर इक्वल और लेस। अगर हमें ज्यादा एप्लीकेशन आती है, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, तो उनकी अलग अलग मेथड है। या तो हम रिफंड कर देते, या प्रो रेटा है, या तो हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करते। कई मेथड्स है, विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स। तो ये तीन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ऑथोराइज, इश्यूड, सब्सक्राइब। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? राइट डाउन। द नेक्स्ट टाइप इज कॉल्ड अप कैपिटल। सी फ्रेंड्स, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ऑथोराइज कैपिटल द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी, इश्यूड कैपिटल इसमें से हम जितना इश्यू करते, सब्सक्राइब कैपिटल। नाउ फोर्थ इज कॉल्ड अप कैपिटल। कंपनी कैन कॉल्ड अप एन अमाउंट इक्वल टू फेस वैल्यू। मान लो 10 रुपीज का शेयर है, तो हम 10 रुपीज कॉल कर सकते, इससे कम भी कॉल कर सकते, ऑफ द शेयर और लेसर अमाउंट फ्रॉम द एप्लीकेंट। When company calls for the lesser amount of the share, the balance amount can be called up in future. Such amount is called up on the share. Such amount called up on the shares is known as called up capital. For example, मान लो हमारे पास 10 रुपीज वाला शेयर है, we have called up 7 रुपीज, we can call 10 रुपीज also. सो हमने 7 रुपीज पर शेयर कॉल किया, हमने इश्यू किया था 60,000 शेयर, तो 60,000 इंटू 7 दैट इज 4,20,000। 4,20,000 फ्रेंड्स जो है वो कॉल्ड अप कैपिटल है। हम जितना कॉल करते हैं 10 रुपीज में से, मान लो 8 रुपया कॉल अप किया, तो जितना शेयर इंटू कॉल्ड अप amount, that is called up capital. For example, I repeat friends, यहाँ पे हमने 7 रुपीज कॉल किया, 60,000 शेयर से, तो 60,000 इंटू 7 दैट इज 4,20,000। ओके, तो अनकॉल्ड कैपिटल क्या है? उल्टा, जितनी हमने कॉल किए और नहीं कॉल किए, द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल। मान लो 10 रुपीज वाला शेयर है, 7 रुपीज हमने कॉल किया, तो 3 रुपीज वी हैव नॉट कॉल्ड अप, वी हैव नॉट कॉल्ड अप। देखो, दिस डिसीजन इज टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कितना हमें कॉल करना है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, और जो अमाउंट हमने कॉल नहीं की दैट वी कॉल इन फ्यूचर। ओके, तो जितनी कैपिटल हमने कॉल नहीं की है, a capital which is yet not called is called uncalled capital. It is called uncalled capital. तो ये एग्जांपल देखो, हमने 10 रुपीज 10 रुपीज में से 7 रुपीज कॉल किया, सो 3 रुपीज वी कैन कॉल इन फ्यूचर। ओके, सो 60,000 शेयर्स वी हैव इश्यूड, 60,000 into 3 that is 1,80,000, 60,000 into 3 that is 1,80,000, उसे हम कहते हैं uncalled capital. Okay, that we can call in future. Okay friends, write down. The next is paid up capital. फ्रेंड्स, क्या होता है कि कभी कभी कंपनी
दो तरीके से शेयर इश्यू करते हैं। नंबर एक, फुल अमाउंट इज कॉल्ड अप। मान लो 10 रुपीज का शेयर है तो 10 रुपीज कॉल करते। सेकेंड, इंस्टॉलमेंट, जो इंस्टॉलमेंट का नाम है ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। तो 4 इंस्टॉलमेंट हो गया। एप्लीकेशन में थोड़ा मंगवाते, अलॉटमेंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो कभी कभी क्या होता है कि द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर आउट ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल इज नोन एज पेड अप कैपिटल। मतलब क्या हुआ कि मान लो अगर कंपनी कॉल करती है 7 रुपीज, तो 7 और 60,000 शेयर इश्यू किया है, तो हमें 4,20,000 अगर मिल जाता है पूरा, तो उसे हम कहते हैं पेड अप कैपिटल। शेयर होल्डर से हम जितना कॉल करते हैं वो पूरा मिल जाता है तो पूरी पेड अप कैपिटल हो गई। अगर मान लो कोई शेयर होल्डर इसमें से कोई लिटिल पार्ट पे नहीं करता है, कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता है, तो हमें इतना पैसा नहीं मिलता है। तो जितना मिलता है उसे हम कहते हैं पेड अप कैपिटल। फॉर एग्जांपल, देखो एक एग्जांपल मैं देता हूं कि मान लो हमने 60,000 शेयर इश्यू किया और 10 रुपया में से 10 रुपीज में से हमने कॉल किया 7 रुपीज, 10 रुपीज में से हमने कॉल किया 7 रुपीज, तो हमारी कॉल्ड अप कैपिटल होनी चाहिए 4,20,000। इफ ए शेयर होल्डर होल्डिंग 1,000 शेयर्स कुड नॉट पे फर्स्ट कॉल ₹2, मान लो हमने बोला कि चलो आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करो, इसमें एक इंस्टॉलमेंट था फर्स्ट कॉल ₹2 वाला, और द शेयर होल्डर हु इज हैविंग 1,000 शेयर, 1,000 इंटू 2,000 उन्होंने नहीं पे किया, मतलब उन्होंने प्रीवियस अमाउंट पे कर दी, एप्लीकेशन में लिटिल अमाउंट, अलॉटमेंट में लिटिल अमाउंट पे कर दी, लेकिन एक कॉल ₹2 वाला उन्होंने पे नहीं किया, मतलब ही विल पे इन फ्यूचर, ऐसा नहीं है नहीं पे करेगा, लेकिन अभी हमें पैसा नहीं मिला है, तो 2,000 रुपीज हमें नहीं मिला है, मिलना चाहिए 4,20,000, क्योंकि 60,000 शेयर इश्यू किया था, 7 रुपीज कॉल किया था, तो हमें मिलना चाहिए 420, इसमें से 2,000 हमें नहीं मिलता है, देन 4,18,000 इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। तो ये जो 2,000 है उसका एक स्पेशल नाम है, बता दो अभी, कॉल्स इन एरियर्स, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग अमाउंट। देयर इज अ स्पेशल नेम इन कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, उसका नाम है कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स, मतलब बाकी पैसा लेना है 2,000 रुपीज। ओके, एंड द लास्ट, द टाइप्स ऑफ शेयर, इसमें एक लास्ट पॉइंट है रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व नहीं है, कीप इन योर माइंड, अगर ये उल्टा है तो आपको याद है 11th स्टैंडर्ड, द रिजर्व कैप्ट फ्रॉम द कैपिटल प्रॉफिट, 2 टाइप्स ऑफ प्रॉफिट आर देयर, वन इज द रेवेन्यू प्रॉफिट, रेगुलर प्रॉफिट में से हम अलग रिजर्व रखते हैं, उसे हम कहते हैं जनरल रिजर्व, लेकिन कैपिटल रिजर्व क्या है, कैपिटल प्रॉफिट, जैसे कि आप प्रॉपर्टी बेचते हो, उसमें से कोई प्रॉफिट मिलता है और आप रिजर्व रखते हो, दैट इज कैपिटल रिजर्व, ये है रिजर्व कैपिटल। समझो थोड़ा मीनिंग, when management of the company feels that the called up capital, हमने 7 रुपीज कॉल किया, and that called up capital is sufficient for the business, no further capital is required in future। अगर कंपनी मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि हमने 7 रुपीज कॉल किया आउट ऑफ 10, 3 रुपीज इज नॉट रिक्वायर्ड, 7 में हमारा बिजनेस चल जाएगा, इट इज सफिशिएंट टू रन द बिजनेस, तो हम ये जो 3 रुपीज है अनकॉल्ड कैपिटल, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं रिजर्व कैपिटल में बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन इन द मीटिंग। तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करते और ये कैपिटल को हम रिजर्व रख देते। वंस दैट कैपिटल इज केप्ट रिजर्व, दैट कैन नॉट बी यूज, एंड वो कैपिटल हम मंगवा सकते हैं कब, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। सो ये जो रिजर्व वाली कैपिटल है उसे हम बोलते हैं रिजर्व कैपिटल, इसका एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है, लेकिन कब, जब कंपनी मैनेजमेंट को ऐसा लगता है, व्हेन इट इज डिसाइडेड कि चलो इतना जो कॉल्ड अप कैपिटल है इट इज सफिशिएंट टू रन द बिजनेस,
तो जो अनकोल्ड अमाउंट है दैट इज कन्वर्टेड इनटू रिजर्व कैपिटल. ओके फ्रेंड्स, राइट डाउन.